اب یہ جو انداز تھا یہ بڑا بدتمیزی والا تھا، بند کرو اسے، اور پھر بہت ہی بدتمیزی کی گئی۔ یہ جو آواز تھی یہ بھی کسی ایک میچور آدمی کی آواز لگ رہی تھی۔ احسن اقبال صاحب خود کافی بڑی عمر کے شخص ہیں، تو ان کی اولاد جو ہے وہ بھی جوان ہے، اب بچے نہیں ہیں چھوٹے ان کے گھر پہ، تو ان کی اپنی اولاد تو جوان ہی ہوگی، لازمی بات ہے۔ میں جانتا نہیں ہوں، زیادہ تر ان کی فیملی کے چند لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن ان کے بچوں کو میں نہیں جانتا۔ تو جو سوشل میڈیا کے اوپر بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا احسن اقبال صاحب کے حوالے سے کہ ان کے بچے آ گئے تھے اور اس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے بعد میں ری جوائن کر لیا۔ لیکن ہم نے یہ بند ہونے سے پہلے احسن اقبال صاحب کے چہرے پہ ایک ناگواری اور خوف کی ملی جلی کیفیت دیکھی اور پریشانی کی کیفیت دیکھی، جس کی وجہ سے پاکستان میں رولا پڑ گیا۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ فوری طور پہ آگ کی طرح وائرل ہو گئی پورے پاکستان میں۔ دیکھیں جہاں گھروں کے اندر برتن ہوتے ہیں تو وہ بجتے ہی رہتے ہیں، چھوٹے موٹے مسئلے ہر گھر میں ہوتے رہتے ہیں، بچے کبھی ضد بھی کرتے ہیں، کبھی بڑے لڑتے ہیں، کبھی بچے لڑتے ہیں، کبھی خواتین کے جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں۔ یہ ہر گھر کے اندر نارمل چیز ہے، اسے اگنور کرنا چاہیے، چلتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن میرے لیے جو عجیب چیز ہے، جو چیز مانی رکھتی تھی، وہ یہ ہے کہ چند منٹوں کے اندر ایک بہت بڑی پرسیپشن سوشل میڈیا پہ یہ بن گئی کہ احسن اقبال صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈانٹ پڑی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مار کٹائی کی ہے ان کے ساتھ، یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ تصویریں ایسی لگانا شروع کر دی کہ جناب یہ دیکھیں، یہ بند ہونے سے پہلے اور بند ہونے کے بعد احسن اقبال صاحب کے چہرے پہ نشان ہے۔ حالانکہ مجھے لگتا ہے سارا فیک ہے کام، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یا پاکستان کی فوجی قیادت نے وہ اپنا پرسیپشن ایسا بنا لیا گزشتہ 3-4 سال میں کہ اب کسی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے سب کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے۔ یعنی بد سے بدنام برا کی ایک مثال ہے۔ وہ ایک بزرگ کہتے تھے نا، بد سے بدنام برا، کہ جو بدنام ہوتا ہے نا وہ برا نہ بھی کرے نا پھر بھی وہ بدنام ہی رہتا ہے، اور سارے سمجھتے ہیں کہ برا اگر ہو رہا ہے تو یہی کر رہا ہوگا، تو بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ یہی جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب فارم 47 کے اوپر ایک ایم این اے بنے اور انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہ آئے، بلکہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے عین مطابق بہتر انداز میں چل رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ انہیں اپریشیٹ کر سکتی ہے، ان میں سے ایک آدمی احسن اقبال بھی ہیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن اس لیول پہ تو اسٹیبلشمنٹ آ کے گھر میں گھس کے مار کٹائی نہیں کرے گی۔ میری تو ابھی تک دانست یہی کہتی ہے، لیکن کیا ہوا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آواز ان کے بیٹے کی تھی۔ یہ مجھے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا، کچھ دیگر لوگ جو جانتے ہیں تھوڑا بہت لوگوں کو، کیونکہ میں تو کبھی ملا ہی نہیں، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ آواز ان کے بیٹے کی تھی۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پڑ گیا تھا کافی دیر تک کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب پتہ ہے آپ کو بد سے بدنام برا، بس میں اس سے زیادہ اور آپ کو کیا کہوں گا۔ اب ناظرین، آج کے دن میں سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں پنجاب میں، وہ پنجاب میں داخل ہوں گے آج صبح، اور دوپہر کے وقت وہ پہنچیں گے بھیرا، بھیرا کے بعد سکھے کی، اور پھر پہلا ان کا استقبال لاہور کے اندر، ایک پنجاب کے استقبال تو ہوتے رہیں گے، لاہور میں پہلا استقبال ان کا ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ہوگا۔ اب رات گئے تک تو یہ خبریں آ رہی تھی کہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی کا لاہور کا یہ دورہ اس کو ناکام بنایا جائے۔ یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنا کچلنے کے بعد، ان کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالنے کے بعد، ان کے کو 35,000 بندے گرفتار کر لیے ہیں، اتنا ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد ابھی بھی انہیں لگتا ہے کہ مزید چھاپوں کی، مزید ظلم اور زیادتی کی ضرورت ہے تاکہ اس پولیٹیکل پارٹی کو مکمل طور پہ کچلا جا سکے۔ بہرحال سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں، کوشش کریں گے کوٹ لکھپت جیل کے اندر یہ جو قید ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، ان سے ملاقات کرنے کی، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جائیں گے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، اس کے علاوہ یہ لبرٹی چوک میں بھی جائیں گے، یہ غالباً انارکلی میں اس طرف بھی جائیں گے، مختلف جگہوں پہ سہیل آفریدی صاحب کے دورے ہوں گے، کارکنوں کے گھر میں بھی جائیں گے، اور حسان نیازی صاحب کے گھر میں بھی جائیں گے، عمران خان کی وہ بہن جن کے ساتھ بالوں سے پکڑ کے انہیں گھسیٹا گیا، ان کے گھر میں بھی جائیں گے۔ تو سہیل آفریدی صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور یہ بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ سہیل آفریدی نے دیا خیبر پختونخوا میں، اور ان علاقوں میں دیا جہاں سے وہ خود الیکشن لڑ کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش ہوئی کہ میں سمگلروں اور دہشت گردوں کا ساتھی ہوں، میں نے انہیں اس بیانیے میں شکست دے دی۔ بیانیہ ڈی جی آئی ایس پی آر بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم سمگلروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، میں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو،
बॉर्डर पर तुम हो, अपने असासे जाहिर करो। जितना गैर कानूनी असला आता है, जितनी दहशतगर्दी आती है, जितने गैर कानूनी लोग आते हैं, तुम्हारी सरबराही में आते हैं। बॉर्डर मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। हर बयानिया में शिकस्त दे दी और वो समझ गए कि कुछ नहीं कर सकते, तो अब कहते हैं कि सुहेल अफरीदी की सरबराही में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। अफरीदियों, तुम लोग भी जानते हो, पख्तूनों तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि इस मौसम में तीरा की जो वादी है या जो पहाड़ है वहां पे बर्फ पड़ रही है, इस वक्त वहां जानवर भी नहीं होते। तो तुम आज ऑपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा और कोई मकसद नहीं, सिर्फ मुझे शिकस्त देना चाहते हो बयानिए की इस जंग में। ये जंग दहशतगर्दी खत्म करने और अमन बहाल करने की होती तो तुम मेरे साथ बैठते और मेरे साथ मशवरा करते। ये जंग अमन बहाली की होती तो जो मशवरा हमने दिया, सियासी जमातों ने जो मशवरा दिया, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को असेंबली के फ्लोर पर इकट्ठा किया, एक 15 नुकाती एजेंडा तैयार किया। तुमने हमारे मेहमानों को बाहर से उठा लिया, तुमने वो बयानिया और जरगा ख़त्म करने की कोशिश की। ये वादे करता है कि तुम अमन की बहाली और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए संजीदा नहीं हो, बल्कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। मेरी कौम, पख्तून कौम और सब जानते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है। अब सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि जी तीरा के अंदर तो बर्फ पड़ी हुई है और वहां पे तो इस वक्त कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता, बंदे नहीं है, जानवर नहीं है, तो आप इस वक्त वहां पे क्या कर रहे हैं। और एक और बात जो सुहेल अफरीदी ने बड़ी खौफनाक की, उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास ये इतला पहुंची है कि वादी तीरा के जो लोग हैं, वादी तीरा में शहरियों से ज़बरदस्ती मुआहदे लिखवाए गए हैं। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा। उन्होंने कहा कि मैंने तो वादी तीरा में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी, ये प्रोपेगेंडा है। तीरा में मकामियों से ज़बरदस्ती मुआहदे लिखवाए गए हैं। फौजी ऑपरेशन के मामले पर इमरान खान के मौक़िफ़ के हम साथ खड़े हैं। ये जनाब मीडिया से भी गुफ्तगू की, अपने लोगों से भी गुफ्तगू की सुहेल अफरीदी ने। और मैं आपको ज़रा ये भी बता दूं कि नुकसान कितना हुआ है दहशतगर्दी से 2025 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में। देखें, आप मेरे वीलॉग निकाल सकते हैं जुलाई और अगस्त 2022 के। उन वीलॉग्स में मैं खुद हवाला देकर मुराद सईद का ये बता रहा हूं कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाकर बसाया जा रहा है, और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। वो वीलॉग मैं निकालूंगा और निकाल के उनकी कटिंग्स आपको सुनवाऊंगा। मेरी टीम अभी निकालना शुरू करेगी, हम 2-4 दिन में आपको निकाल कर सुनाते हैं कि किस तरीके से हम उस वक्त ये बता रहे थे कि जनाब ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में इम्प्लांट की जा रही है, लाई जा रही है। और इसमें सबसे आगे जो है वो मुराद सईद थे, जो बार बार ये बता रहे थे कि ये ज्यादती हो रही है। लेकिन दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को तोड़ना चाहती थी, पीटीआई भी नहीं टूटी और दहशतगर्दी भी आ गई। और अब 2025 का डाटा ये बताता है कि दहशतगर्दी के 1588 वाकयात हुए हैं। बन्नू में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा 394 वाकयात हुए। वज़ीरिस्तान में 181, जनूबी वज़ीरिस्तान में 102 और 502 एहलकार और अफराद शहीद हुए और 348 दहशतगर्द मारे गए। 8 खुदकुश धमाके हुए। टेरर फाइनेंसिंग के 30 मुकदमा दर्ज हुए। 54 ड्रोन हमले भी इस साल 2025 में हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। 116 टारगेट किलिंग के केसेस भी रिपोर्ट हुए। अब ये सारी दहशतगर्दी आई है कि मुराद सईद मना कर रहा था, वो पिट रहा था कि ये ना करें, लेकिन ये बाज नहीं आए और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की, उसका नतीजा अब आपके सामने है। नाज़रीन, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखकर बताया कि जो जरगे ने फैसले किए हैं, जो 15 नुकाती एक एजेंडा है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा कि ये मकामी लोग कह रहे हैं, मकामी जरगा कह रहा है, मकामी अफराद कह रहे हैं, तो इसके मुताबिक आप अमल दरामद करेंगे तो अमन व अमान कायम हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा का। ये अंधाधुंध किस्म के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इनके ज़रिए से ना तो पहले अमन कायम हुआ और ना आइंदा अमन कायम होगा। अमन जब भी कायम होगा मुश्तरका लाएअमल के ज़रिए होगा, और हमारा मकसद ये था कि अमन, इस्तेहकाम और अवामी एतमाद के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका लाएअमल तश्कील दिया जाए। और हमने जो एलामिया पेश किया है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जो है इसके ऊपर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करें। अब नाज़रीन, वज़ीर आला तो आज आ रहे हैं पंजाब में, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक अजीबोगरीब कारनामा कर दिया। छापे तो मारे ही मारे, लेकिन ये एक नया कानून पास किया है। बेनज़ीर शाह साहिबा ने भी इसको रिपोर्ट किया, बहुत सारे और लोग हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। कानून इन्होंने ये बना दिया है कि एक मखसूस ताकत दे दी है इन्होंने पुलिस को। पूरी दुनिया में पुलिस के पास इस किस्म की ताकत नहीं होती। आगे मार्शल लॉ लगा हो तो शायद ऐसी ताकत हो। महज़िब दुनिया में कहीं भी पुलिस के पास ऐसी ताकत नहीं होती कि जिसके मर्जी घर के अंदर चादर और चार दीवारी के अंदर पुलिस घुस जाए।
बगैर किसी अदालती वारंट के या बगैर किसी कानूनी सर्च वारंट के पुलिस दाखिल नहीं हो सकती। पुलिस को जाना पड़ता है, जाके पूरे एक लीगल प्रोसीजर से गुजर के वहां से इजाज़तनामा लेना पड़ता है, और इजाज़तनामा लेने के लिए बाकायदा एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और वो उसके साथ पुलिस के साथ दीगर लोग होते हैं। फिर पुलिस दाखिल होती है सर्च करने के लिए। ऐसे नहीं होता कि मुंह उठा के आ जाते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर अजीबोगरीब काम कर दिया, जो डिक्टेटर्स जो काम ना कर सके वो काम मरियम नवाज ने कर दिया। काम ये किया कि पंजाब हुकूमत ने नया कानून पास कर दिया पतंगबाजी को जवाज बनाकर। ये नहीं पतंगबाजी को करे ना करे, पुलिस वाला तो कह सकता ना, ये पतंगबाजी की वजह से मैं गया था। इसको जवाज बनाकर पुलिस किसी भी घर में बगैर वारंट के दाखिल हो सकती है, तलाशी ले सकती है, सील कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है। इसका बड़ा खौफनाक नतीजा निकलेगा। पुलिस के बाद ये इख्तियार पैदा हो गया है कि जिसके मर्जी घर में जब मर्जी दाखिल हो जाएं, जिसको मर्जी गिरफ्तार कर लें, और बाद में एक लाइन लिख कर दे दें, हमें पतंगबाजी का शुबा था या हमें लगा कि इस घर के ऊपर से पतंगबाजी हो रही थी। बस इतनी सी कहानी है जो पुलिस ने सुनानी है। उसके बाद जिसके मर्जी घर में घुस जाए, और ज्यादातर अब जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको हरासा किया जाएगा, उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। पंजाब को ना अमली तौर पे पुलिस स्टेट बना दिया है। वैसे तो शहबाज शरीफ ने भी यही काम किया था, लेकिन मरियम नवाज ने तबाही फेर दी है। 2019 का एक वाकया याद कराता हूँ। उस्मान बुज़दार था वज़ीर आला पंजाब, तो साहिवाल के नज़दीक उस वक्त CTD ने गलत इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर एक ऑपरेशन कर दिया, गोलियां चला दी हैं गाड़ी के ऊपर, जिनमें एक फैमिली के 4 लोग मारे गए, उनके कुछ बच्चे बच गए, और बाद में पूरे पाकिस्तान के ऊपर वावेला मच गया। मैंने बतौर सहाफ़ी इसके ऊपर बड़ी ज़ोरदार आवाज़ उठाई, बहुत सारे और सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई, टीवी चैनल ने लंबी लंबी ट्रांसमिशंस की, बहुत लंबे लंबे इसके ऊपर बुलेटिन्स हुए, बहुत सारे इसके ऊपर बीपर्स हुए। कई दिन तक पंजाब हुकूमत को और CTD को रगड़ा लगाया गया। वो एक वाकया था और मीडिया सरापा एहतजाज हो गया। लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत है, तो रोज़ाना की बुनियाद पे CCD जो मरियम नवाज ने एक बनाई हुई है फोर्स, वो कत्ले आम कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे इंसानों को कत्ल किया जा रहा है। अब तक की इतला के मुताबिक मुबैना तौर पे 1000 के करीब मावराए अदालत इंसानों को कत्ल कर दिया गया है। इस हुकूमत को आए हुए 1.5 पौने 2 साल हुए हैं, और इतने अरसे में CTD बनाकर उसके जरिए से 1000 के करीब इंसानों को मावराए अदालत, यानी अदालत में पेश करना चाहिए ना, इनका कत्लेआम कर दिया गया है। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ, इस वाकये में एक ही घर के 5 अफराद को CTD ने मुख्तलिफ शहरों में कत्ल कर दिया। उन 5 लोगों के 22 बच्चे यतीम कर दिए। अब मीडिया आवाज नहीं उठा रहा, मीडिया इस पे बात ही नहीं कर रहा। सुहेल जफर चट्टा, इनको बनाया गया जनाब CTD का हेड, और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत का एक अलग ही मेयार कायम किया है। मुझे याद है जब मुझे एंटी करप्शन उठा के लेकर गई ना, तो सुहेल जफर चट्टा ने मुझे फोन किया एक ऑफिसर के फोन पे, और इसने मेरे पे दबाव डाला। इसने मुझे कहा कि या तो जिन लोगों ने तुम्हें पहले अगवा किया था हम आपको दोबारा उन्हीं के हवाले कर देंगे, पहले आप 5 महीने गुजार के आए थे, अब आपको 5 साल तक वो नहीं छोड़ेंगे, लंबे अरसे के लिए आपको रख लेंगे, या फिर आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो ये इस किस्म का आदमी था सुहेल जफर चट्टा। इसने एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सपोर्ट किया, और ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचता रहा एजेंसियों के। इमरान खान के दौर के अंदर इसके ऊपर बड़े खौफनाक करप्शन के इल्जाम थे, लेकिन जैसे ही उनका दौर खत्म हुआ ये वापस आया, और आगे इसको जो ड्यूटी दी गई इसने तबाही फेर दी। अब इसको बनाया गया है CCD का हेड, और मरियम नवाज ने इसको तरक्की देके ये हेड बनाया। अब जो लड़के कत्ल किए गए उनकी फैमिली से बातचीत की मीडिया ने, तो उन्होंने बताया कि साहिवाल में एक शादी हो रही थी जहां पे 3 भाई मौजूद थे, इमरान, अदनान और इरफान, और 2 उनके दामाद भी मौजूद थे इसी फैमिली के, हसन, जहांगीर और नज़ीर। वो ये बताते हैं कि 7 बंदों को उठाया गया साहिवाल में शादी से। खवातीन के जेवर और उनके जो पैसे थे नकदी वगैरह वो भी छीन लिए गए। खवातीन को बाथरूमों में बंद कर दिया गया, और इनको उठाकर CTD या पुलिस ले गई। वो कहते जी हम फौरी तौर पे पुलिस के पास पहुंचे लाहौर में। पुलिस ने बताया कि सुबह आपको रिजल्ट दिया जाएगा। सुबह हमें बताया गया कि जनाब आपके जितने बच्चे हैं वो पुलिस मुकाबलों में मार दिए गए हैं, और लाशें भी नहीं दी जा रही थी। लाशें देना एक मुसीबत बन गया, और 3-4 दिन लगाकर इनको अमानतन दफना दिया गया था। फिर 3-4 दिन लगाकर बड़ी मुश्किल से वकील ने हाई कोर्ट से जो है वो ऑर्डर करवा के इनकी लाशें वापस हासिल करवाई और फैमिली को दी। अब ये जो 5 बंदे एक ही खानदान के, जिनमें 3 भाई हैं और 2 दामाद हैं, ये जो कत्ल किए गए, ये 5 अलग अलग शहरों में कत्ल किए गए। एक को चनियोट में, एक को जड़ावाला में, एक को हाफजाबाद में, एक को गुजरावाला में, एक को नारोवाल में कत्ल किया गया।
पांचों एक ही जगह शादी में मौजूद थे, एक ही जगह साहिवाल में पांचों मौजूद थे। साहिवाल से पांचों को गिरफ्तार किया गया और 24 घंटे के अंदर अंदर यह खबर आ गई कि पांचों अलग अलग जिलों में, चनियोट में, जड़ावाला में, हाफजाबाद में, गुजरावाला में और नारोवाल में पांचों कत्ल हो गए हैं और लाशें मुख्तलिफ जगहों पे पकवा दी। जो FIR की गई पांचों की, वो इस तरह की गई कि नाके पे पुलिस खड़ी थी, ये जनाब वहां से आ रहे थे, पुलिस ने इनको रोका, इन्होंने फायरिंग कर दी, अपने ही साथियों की फायरिंग से एक मारा गया और 2 भाग गए। ये सारी FIR इसी तरह की हैं। आफ्ताब अहमद बाजवा साहब इनके एडवोकेट हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि हमने इनके पांचों बंदों के ID कार्ड्स को चेक करवाया पुलिस के रिकॉर्ड में, इनके ऊपर किसी किस्म के डकैती के, कत्ल के या कोई इस तरह के संगीन इल्जामात मौजूद नहीं है। लेकिन जो फैमिली की, उनकी माँ या बच्चों की या उनका बाप है, वो ये कहते हैं जी कि हमारी एक लड़ाई हुई थी और भावलपुर में लड़ाई हुई थी किसी पार्टी के साथ, और उस लड़ाई में हमसे कुछ मुतालबात किए जा रहे थे और पर्चा वापस लेने की बात की जा रही थी और ये मामला आगे बढ़ा तो ये हमारे बच्चे कत्ल हो गए। अब जनाब ये कोई बात समझ नहीं आ रही। देखें, अगर ये मुजरिम थे भी या इन्होंने कोई जराइम किए हुए थे तो इनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। इनको गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करके इनसे बरामदगी करते, बरामदगी करके इनको अदालत में पेश करते, अदालत के जरिए इनको सजा देते। या पांचों एक ही लेवल के खौफनाक क्रिमिनल थे कि पांचों को कत्ल करना बहुत जरूरी था, तो 3 भाइयों को और 2 उनके जो दामाद हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया, पुलिस ने कर दिया। और ये मावराए अदालत कत्ल है। जब इस तरह के कत्ल होते हैं ना तो फिर अपने जाती स्कोर भी सेटल किए जाते हैं। 1000 बंदे जो मारे गए हैं उनमें से अगर आप रेशो निकालें, सारे बंदे बेगुनाह ना भी हों तो कुछ तो बेगुनाह होंगे ना, तो जो बेगुनाह मारे गए उनका कत्ल किसके सर पे जाएगा? तो जो अदालत इंसाफ देती है ना, अदालत के अंदर एक बड़ी जबरदस्त सोच होती है कि बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे गुनाहगार बच जाए। यहां पे गुनाहगारों को मारने के चक्कर में अगर बेगुनाह मारे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? 5 लोगों का क्या जुर्म एक जैसा हो सकता है? और एक ही जगह से पकड़ के 5 मुख्तलिफ शहरों में उनका जनाब कत्ल डाल दिया कि जनाब इस तरह के वाकये में सारे मारे गए हैं। तो नादरीन, ये इस वक्त पंजाब के अंदर हरकतें की जा रही हैं। और हाँ, इसके साथ एक और चीज़ आप जोड़ के देख लें, ये शहर बानो नकवी साहिबा है जिनकी एक अभी ड्रामा वीडियो भी आई कि वो कत्ल हो जाता है दौराने उनके इंटरव्यू और फिर वो किस तरीके से वो ड्रामा पूरा क्रिएट होता है। वो अजीबोगरीब किस्म की एक वीडियो आई। अब जनाब एक और डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने दावा किया कि उन्हें इन खातून ने ठग लिया और इनके साथ बड़ी ज्यादती की है। वो बताते हैं जी, मुझे थाने में बुलाया गया, मैं वहाँ गया तो ASP शहर बानो नकवी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने मेरा मौक़िफ़ सुना और कहा कि मरीज़ की नज़र तो 6/6 है, लेकिन चूंकि मरीज़ मुतमईन नहीं है, अब ये आंखों के डॉक्टर थे, इन्होंने इलाज किया हुआ था, लिहाजा आप कसूरवार हैं। इन्होंने कहा जी मेडिकल बोर्ड बिठाएं, कोई चीज़ चेक कर लें, मरीज़ का मैंने इलाज ठीक नहीं किया तो वो बता दें। कहते जी मरीज़ मुतमईन नहीं है और हमारे पास आपका टेंटवा दबाने के 110 तरीके हैं, लिहाजा अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और पैसा दें। अब वो उससे बंदे से जो है वो को 1.5 मिलियन ले लिया, ये डॉक्टर से किया इन्होंने। शहर बानो नकवी जो ड्रामा क्वीन बनी हुई है पंजाब पुलिस में, और इनको बड़ी शाबाशी भी माजी में मिलती रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये मोहसिन नकवी की रिश्तेदार है, लेकिन चलो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं जनाब मेरे से पैसे ऐंठ लिए इन्होंने। और एक सीनियर सर्जन है, वो कहता है मैंने काम भी ठीक किया था, बस धमका के ले लिए। ये नाज़रीन पंजाब में हालात हैं। जाली हुकूमत होगी तो यही होगा ना। अब इस जाली हुकूमत को बनाया गया था 8 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी 2026 को पूरा पाकिस्तान बंद करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है, और वो ये चाहते हैं कि ताजर भी, ट्रांसपोर्टर्स भी और तमाम शहरी जो है वो इसके अंदर ताउन करें और पूरे पाकिस्तान को बंद करें। अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं और इसका मोमेंटम बना लेते हैं, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, या पूरा पाकिस्तान नहीं तो 80% पाकिस्तान, 70% पाकिस्तान भी अगर वो बंद करने में कामयाब हो जाते, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके बाद अगला मोमेंटम भी बना पाएगी। बहरहाल 8 फरवरी के हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जैसे कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी निकले, ऐसे ही 8 फरवरी 2026 को भी बाहर निकलें और अपने मैंडेट के लिए एहतजाज करें। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये खबर है अब ISF को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है आने वाले दिनों में। इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो उनके स्टूडेंट विंग्स होते हैं वो प्रेशर ग्रुप होते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ISF बहुत फ्रंट पे आके लीड कर रही है
اور انہیں بڑی زبردست ذمہ داری دی جا رہی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے. آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ میں مزید چیزیں اس پہ شیئر کروں گا. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کے بیچ میں جو ایک چھوٹی سی کھٹ پٹ ہوئی ہے کچھ معاملات کو لے کر, اور احسن بھون صاحب اس میں آ کر جسٹس صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, تو اس میں پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا سارا کا سارا حملہ آور ہو گیا احسن بھون پر اور جسٹس عالیہ نیلم پر, اور بڑے عجیب و غریب قسم کے ان کے بارے میں ریمارکس دیے جا رہے ہیں, ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے. تو پی ایم ایل این بالکل برداشت نہیں کرتی. ویسے جو بھی کارکن بنے گا نا پولیٹیکل پارٹی کا, پھر پولیٹیکل پارٹی یہی ان سے توقع کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ کارکن بن کر ہی رہے گا. نواز شریف کی سالگرہ سیلیبریٹ کی پی ایم ایل این نے اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی چلایا. تو نواز شریف کی برتھ ڈے کے اوپر جو ٹرینڈ چلا اس پہ 10,000 پوسٹ ہوئی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ نواز شریف جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, ان کی سالگرہ پہ جو پوسٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ